Very good morning, students. Today we will talk about Prime Minister and the Council of Ministers. As already went through that Prime Minister is the most important political institution, but in our country there is no direct election to the post of Prime Minister the way it is there in अमेरिका राइट यूएसए में प्रेसिडेंट के डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं. हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर के लिए की पोस्ट के लिए कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते हैं. Right, ours is a parliamentary form of government. Right here, so the president appoints the prime minister. Appointment जो होती है prime minister की, that is there by the president, but the president cannot appoint anyone he or she likes. He has to appoint the leader of majority party or the coalition of the parties that gets a majority in the Lok Sabha. लोकसभा में जिस भी पार्टी की या कोलिशन ऑफ पार्टीज की मेजॉरिटी होगी उसके लीडर को ही प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है. बट इन केस no single party or alliance gets a majority, the president appoints the person most likely to secure a majority support. The prime minister does not have a fixed tenure anyhow कि अगर किसी भी एक पर्टिकुलर पार्टी को या अलायंस को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, फिर प्रेसिडेंट जो है वो अपनी मर्जी से किसी को प्राइम मिनिस्टर बना सकता है जिससे वो लगता है कि वो एक मेजॉरिटी सपोर्ट सिक्योर कर सकता है, और कुछ टाइम पीरियड दे दिया जाता है कि उस टाइम पीरियड के अंदर फिर नए प्राइम मिनिस्टर को अपनी मेजॉरिटी जो है वो प्रूव करनी होती है. He continues to in power so long as he remains the leader of the majority power or the party or the coalition. अगर उसकी खुद की ही पार्टी या जिस कोलिशन का वो लीडर है वही कह दे कि हमें ये प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए, तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो ही विल रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट, कोई और प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा. प्राइम मिनिस्टर ही इज जस्ट अ लीडर of the majority party or the coalition, right? So it is, you can say कि additional responsibility है which is given to the prime minister. Now after the appointment of prime minister, the president appoints other ministers on the advice of prime minister. एक बार प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो गया, नाउ प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द अदर मिनिस्टर्स, जिसे हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी कहते हैं. बट दिस अपॉइंटमेंट ऑफ द अदर मिनिस्टर्स is there on the advice of the prime minister. Prime minister gives a list to the president, those who are given the ministries or the portfolios, and उसके बाद president जो है वो appointment कर देता है. The ministers are usually from the party or the coalition that has the majority in the Lok Sabha. Right? जो ministers होते हैं normally वो कोलिशन पार्टी या जो मेजॉरिटी पार्टी है उसके ही मेंबर्स होते हैं. बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो ऑपोजिशन के किसी मेंबर को भी मिनिस्टरशिप दे सकता है, बट ऐसा नहीं होता. बट ऐसा रूल भी नहीं है कि नहीं बना सकते हैं. बट नॉर्मली प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं दे चूज मेंबर्स फ्रॉम देयर ओन पार्टी और द कोलिशन पार्टी. And this is the right of the prime minister. The prime minister is free to choose the ministers as long as they are members of parliament. So जब तक वो MP हैं, members of parliament हैं, prime minister जो है उन्हें अपनी मर्जी से choose कर सकता है. It normally is decided by the prime minister कि किस minister को कौन सी ministry देनी है. Sometimes a person who is not a member of parliament can also become a minister. कई बार कोई पर्सन जो है वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, राइट, लेकिन उसे मिनिस्टर बनाया जा सकता है. लेकिन एक कंडीशन दे दी जाती है दैट दैट पर्सन हैज टू गेट इलेक्टेड टू एनी ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 6 months ऑफ अपॉइंटमेंट एज मिनिस्टर. इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल वी पीपल कैन हैव कि पीछे इलेक्शंस हुए थे जब, तो उसमें Arun Jaitley, he lost from Amritsar, right? He lost from Amritsar, but still he was made the finance minister of the country, right? He lost from Amritsar in the elections, but still he was made the minister. He was given the very important responsibility.
राइट, फाइनेंस मिनिस्ट्री उनको दे दी गई, और उसके बाद उनको टाइम पीरियड दिया गया था कि ही हैज टू बी गेट इलेक्टेड फ्रॉम एनी ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और उसके बाद वो राज्यसभा से इलेक्ट करवा दिए गए थे. So Council of Ministers, it is the official name for the body that includes all the ministers. Right? Council of Ministers हम कहते हैं जिसमें सारे ही ministers include हो जाते हैं. It usually has 60 to 80 members of different ranks. जब भी कभी prime minister बनता है तो what they do, they select his ministry, right? और normally जब prime minister बन जाते हैं तो उनकी ministry बड़ी छोटी सी होती है. छोटी सी होते हैं मीन्स कि इनका कैबिनेट होता है नॉर्मली 11 मिनिस्टर्स और 12 मिनिस्टर्स और 15 मिनिस्टर्स एंड सो ऑन. बट धीरे धीरे क्या होता है कि जब वो काम का प्रेशर बढ़ने लग जाता है तो सारी की सारी मिनिस्ट्रीज जो है वो डिवाइड करनी शुरू हो जाती हैं. और प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो खुद भी अपने पास कई मिनिस्ट्रीज रखता है. राइट, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो नॉर्मली ही और शी कीप्स द मिनिस्ट्रीज विद देम आल्सो. राइट, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही है, उनके पास कितनी सारी मिनिस्ट्रीज जो होंगी जो उनके अंडर काम कर रही हैं. राइट, सो ये हमारा एक पैटर्न होता है. सो नॉर्मली बाद में क्या होता है कि ऑलमोस्ट 60 to 80 जो मिनिस्टर्स हैं वो बन जाते हैं, तो जो कैबिनेट है वो इतनी बड़ी हो जाती है, कैबिनेट और मिनिस्ट्रीज जो है वो इतनी नॉर्मली हो जाती है. तो इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है. ये जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है, इट इज नॉर्मली डिवाइडेड. हाउ इट इज डिवाइडेड? द फर्स्ट कैटेगरी इज द कैबिनेट मिनिस्टर्स. राइट, कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या होते हैं? जो टॉप लेवल लीडर्स होते हैं रूलिंग पार्टी के या कोलिशन पार्टी के. Please underline this. These are usually top level leaders of the ruling party or parties who are in charge of the major ministries. Right? So usually the cabinet ministers meet to take decisions in the name of Council of Ministers. या आप कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं. जैसे हम कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं, डिफेंस हो गई है, होम मिनिस्ट्री हो गई है, फाइनेंस हो गई है. राइट, ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं. तो ऐसी 8-10 मिनिस्ट्रीज होती हैं जो कैबिनेट मिनिस्ट्रीज बनती हैं. दीज आर टॉप लेवल मिनिस्ट्रीज. Right, and usually these cabinet ministers meet to take the decisions in the name of Council of Ministers. सारे ministers के नाम पर ये cabinet ministers ये decision ले लेते हैं. It is thus the inner ring of Council of Ministers. Inner ring का मतलब क्या हुआ? ये होती है ministries जो prime minister के बहुत ज्यादा close होती हैं. Right, and it comprises about 20 ministers. उसके बाद आते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज. मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, दीज आर यूजुअली इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्ट्रीज. छोटी मिनिस्ट्रीज के इंचार्ज होते हैं और दे पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग्स ओनली व्हेन स्पेशली इनवाइटेड. कई बार आप लोग न्यूज़पेपर में सुनते हैं कि आज कैबिनेट मिनिस्टर्स की मीटिंग है. राइट, तो कैबिनेट मिनिस्टर्स की मीटिंग है कि इट मीन्स कि वही 15-20 जो मेन मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग होगी. कभी अगर दूसरे नेक्स्ट लेवल आप कह सकते हैं मिनिस्टर्स का, व्हेन दे आर इनवाइटेड देन ओनली दे कम टू पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग्स. उसके बाद आते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट. दीज मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट आर अटैच्ड टू एंड रिक्वायर्ड टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स. जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनकी हेल्प करने के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जो है वो इनकी कैटेगरी जो है वो क्लास जो है वो बनाई जाती है. And since it is not practical for all ministers to meet regularly and discuss everything, the decisions are taken in cabinet meetings. अदरवाइज तो जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, जितने भी एमपीज होते हैं, वो पार्लियामेंट सेशन में तो मिलते ही हैं. बट डेली लाइफ में ये जो डिसीजंस कई बार लेने पड़ते हैं उसके लिए हर मिनिस्टर को आई मीन इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि एवरी मिनिस्टर विल आई मीन गैदर एंड दे विल डिस्कस. सो ऐसा क्या होता है, डिसीजंस जो है कैबिनेट मीटिंग्स में ही हो जाते हैं. कैबिनेट मीटिंग्स मींस वही जो 15 to 20 जो मेन मिनिस्टर्स हैं वही मिलकर डिसीजंस जो है वो ले लेते हैं. राइट, तो इसलिए कि कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है, मिनिस्ट्री जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट है दैट समटाइम्स in many of the countries parliamentary democracy is
often known as the cabinet form of government. जब हम कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, इट मींस इट्स अ डेमोक्रेटिक वन, एंड हियर आल्सो द कैबिनेट मिनिस्ट्री लीड्स, द कैबिनेट वर्क्स एज अ टीम, right? So here the ministers may have different views, opinions, but everyone has to own up to every decision of the cabinet. हर किसी के अपने ओपिनियन हो सकते हैं, हर किसी का अपना व्यू हो सकता है, लेकिन डिसीजन जो है वो कॉमनली जो है कैबिनेट लेती है, राइट? सो जो कैबिनेट मिनिस्टर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी डेमोक्रेसी में, राइट? और once the elections are over, right, once these people they become the members of parliament and once a prime minister is appointed, उसके बाद क्या होता है कि जितने भी उस पार्टी को बिलोंग करते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, दे एवरीवन वांट्स टू गेट अ मिनिस्ट्री, राइट? यहाँ पर एक आपके कार्टून दिया है, द रेस टू बिकम मिनिस्टर, इट इज नॉट अ न्यू वन. अगर आप इस कार्टून को देखें तो यू कैन सी कि देयर इज अ रूम वेयर द प्राइम मिनिस्टर सिटिंग, ही इज मेकिंग द लिस्ट कि किसको क्या मिनिस्ट्री देनी है, एंड द पीपल हु आर स्टैंडिंग आउटसाइड, दीज आर द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एंड हाउ दे आर विलिंग टू नो कि किसको क्या मिनिस्ट्री मिल रही है. एक क्यूरियोसिटी जो है यू कैन सी इन दिस कार्टून. They are so curious to know whether they are getting the ministry or what ministry they are getting. और क्योंकि जितने जो प्राइम मिनिस्टर के ज्यादा क्लोज होते हैं उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज जो है वो दे दी जाती हैं. नाउ दिस रेस टू बिकम मिनिस्टर, इट्स नॉट न्यू. Here is a cartoon depicting ministerial aspirants waiting to get a berth in Nehru's cabinet after the 1962 elections. तो ये जो है ये 1962 के elections के टाइम पे कार्टून बनाया गया था, जहां पर Mr. Nehru is sitting inside and deciding which ministry is to be given to which minister, right? तो ये बहुत ज्यादा एक क्योंकि इम्पोर्टेंट रोल होता है और एक बहुत बड़ी से होती है इन कैबिनेट मिनिस्टर्स की, सो दे वांट टू गेट अ मिनिस्ट्री इन द कैबिनेट, राइट? सो ये इस ढंग से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है या उसके मिनिस्ट्री जो है दैट वर्क्स. No minister can openly criticize any decision of the government. Now you can see this cartoon also. This is where it is chaired by the Prime Minister Indira Gandhi in early 1970s. जब ये बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, तो ये कार्टून देख के आप समझ सकते हैं कि what is the size of the प्राइम मिनिस्टर. इट मीन्स कि कितनी ज्यादा पावर है प्राइम मिनिस्टर के पास कि उनके सामने जो अदर मिनिस्टर, दे जस्ट हैव टू एग्री व्हाट द प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स. Anyhow, the powers of the prime minister we will discuss later on. So as such, cabinet ministry may everyone may be having different opinion, different views, but no minister can openly criticize any decision of the government. They all have to have a common say in the government. Even if it is about another ministry or department, every minister has secretaries who are civil servants. हर मिनिस्ट्री के पास, जैसे हम लोग पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं कि एवरी मिनिस्ट्री इट इज हैविंग इट्स ओन डिपार्टमेंट, राइट? सो उन डिपार्टमेंट में कितने सारे लोग काम करते हैं, उनका जो हाईएस्ट ऑफिसर होगा he'll be the secretary and he'll be the civil servant even. सिविल सर्वेंट्स जो है वही सेक्रेटरीज बनते हैं, और ये जो सेक्रेटरीज होते हैं दे प्रोवाइड द नेसेसरी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन टू द मिनिस्टर्स टू टेक डिसीजंस. एग्जीक्यूटिव के बारे में आपको याद होगा, हमने पहले पढ़ा था कि एग्जीक्यूटिव जो है वो दे आर एक्सपर्ट्स एंड दे शो द वे टू दीज मिनिस्टर्स, दे एडवाइज दीज मिनिस्टर्स एंड फाइनली द डिसीजन इज टेकन बाय दिस मिनिस्टर्स. तो ये जो हर मिनिस्ट्री के पास अपना सेक्रेटरी होता है, ये सेक्रेटरी उस मिनिस्ट्री की प्रॉपर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो मिनिस्टर को देता है. सो इट हेल्प्स द मिनिस्टर टू टेक अ डिसीजन. So the cabinet as a team is assisted by the cabinet secretariat. This includes many senior civil servants who try to coordinate the working of different ministers. So जो कैबिनेट है ये एक पूरी एक टीम होती है, और हर कैबिनेट मिनिस्टर की जो मिनिस्ट्री है उसके पास अपना एक डिपार्टमेंट होता है. तो सब कैबिनेट मिनिस्टर्स और ये सभी डिपार्टमेंट्स जो हैं ये जॉइंटली काम करते हैं एज अ टीम. इतनी बड़ी कंट्री को रन करना है तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर शुड हैव मेनी मेनी पीपल दोज हु आर वेरी लॉयल टू हिम और हर, और उसके बाद वो एज ए टीम बनी होती है जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेती है. फाइन. सो
now we just need to know that what the powers of the prime minister are. अभी तक आप लोगों को इतना पता चल चुका है और आप इतने सालों से देख रहे हैं कि हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर जो है, he or she is always a powerful one. जो भी डिसीजन होता है normally that is there in the name of prime minister, right? So the constitution does not say very much about the powers of the prime minister or the ministers or the relationship with each other. कॉन्स्टिट्यूशन में एज सच बहुत ज्यादा पावर्स जो है प्राइम मिनिस्टर की या मिनिस्टर्स की, वो इतनी ज्यादा मेंशन नहीं है, लेकिन एक ये अनडिफाइंड सी पावर्स जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं, एंड he is as the head of the government, he is having wide ranging powers. Not now what the working of the prime minister is, प्राइम मिनिस्टर का काम क्या होता है, what does he do? You need to underline this. He chairs cabinet meetings. जो भी कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं वो इसकी लीडरशिप के अंडर ही होती है, इनके हेड के अंडर ही होती हैं. He coordinates the work of different departments. जो प्राइम मिनिस्टर होता है सारे डिपार्टमेंट के काम को कोऑर्डिनेट करता है, उनको एक साथ लेकर चलता है. His decisions are final in case disagreements arise between departments. जितने भी डिपार्टमेंट्स कैबिनेट मिनिस्ट्री के काम कर रहे हैं, अगर उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं या कोई केस डिसएग्रीमेंट्स हो जाता है किसी एक इशू के ऊपर, अगर वो एग्री नहीं करते हैं, तो उस केस में प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन जो है वो फाइनल माना जाता है. He exercises general supervision of different ministries, but obvious as he being the head of the government, he supervises the working of different ministries. All the ministries, they are answerable to the prime minister. All ministers, they work under his leadership. Even the prime minister distributes and redistributes work to the ministers. अब ये प्राइम मिनिस्टर की इच्छा होती है इसने किसको क्या काम देना है, क्या काम वापस ले लेना है, मिनिस्ट्री देनी है कि नहीं देनी है, एंड ऑल. He also has the power to dismiss ministers. अगर उसको लगता है कि कोई मिनिस्टर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो that minister can be dismissed even. इतनी ज्यादा पावर्स जो है प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं कि वो अपॉइंट प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकता है अपॉइंटमेंट के लिए, तो वो डिसमिस भी खुद कर सकता है. एंड इसकी पावर जो है प्राइम मिनिस्टर की इस बात से पता लगती है कि इन केस ऑफ एनी ऑफ द इशू, अगर प्राइम मिनिस्टर क्विट कर जाता है, अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर जाता है, तो ऐसे में पूरी की पूरी मिनिस्ट्री जो है उसे रिजाइन करना पड़ता है, या पूरी की पूरी मिनिस्ट्री जो है वो रिजाइन कर देती है. इतनी ज्यादा पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर की है. सो इफ द कैबिनेट इज द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, within the cabinet it is the prime minister, right? जो कैबिनेट है अगर हमारी पूरी कंट्री में सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन माना जाता है, क्यों? क्योंकि सारे डिसीजंस जो है वो कैबिनेट में ही होते हैं, कैबिनेट मीटिंग्स में ही होते हैं. लेकिन कैबिनेट्स के बीच में फिर आप कह सकते हैं कि द प्राइम मिनिस्टर ही इज द मोस्ट पावरफुल, ही इज द मोस्ट पावरफुल. The powers of the prime minister in all parliamentary democracies of the world have increased so much in recent decades that parliamentary democracies are sometimes seen as prime ministerial form of government. और ये सब हमारी कंट्री में ही नहीं है, पिछले कुछ recent decades में जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी पावर जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि कई बार पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज जो हैं उसे प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कह सकते हैं. अदरवाइज ये जो जहां पे प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम होता है दैट इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि हमारे है, ब्रिटेन में है, राइट? सो दीज आर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. लेकिन प्राइम मिनिस्टर इतने ज्यादा पावरफुल हुए हैं कि नाउ इट कैन बी ऑल्सो सीन एज अ प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट? सो इसी से क्लियर हो जाता है कि इन कंट्रीज में प्राइम मिनिस्टर जो है वो कितना ज्यादा पावरफुल है. As political parties have come to play a major role in politics, the prime minister controls the cabinet and parliament through the party,
प्राइम मिनिस्टर पूरी कैबिनेट और पूरी पार्लियामेंट को कंट्रोल करता है. एंड द मीडिया ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स to this trend by making politics and elections as a competition between top leaders of parties. आपको भी पता है कि जब इलेक्शंस होने होते हैं तो उसको एज अ फेस्टिवल किस ढंग से मीडिया जो है वो प्रेजेंट करना शुरू कर देती है, बिकॉज दिस एंटायर यू कैन से द parliamentary form of government, it is just a game of power. Everyone wants to get into the power, और इसी चीज को हमारी मीडिया जो है वो बहुत अच्छे से एनकैश कर लेती है. And in India also, we have seen such a tendency towards the concentration of powers in the hands of Prime Minister. और जब से हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं तभी से आप कह सकते हैं कि ये जो पावर्स हैं या जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो काफी ज्यादा पावरफुल हैं. जवाहरलाल नेहरू, he was the first prime minister of India. He also was having the great authority because he had great influence over the public. क्योंकि जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई तब से ही यू कैन से कि जो लोग थे दे वांटेड द लीडर्स कि जो उनकी कंट्री को रन कर पाता. तो जब उनको शुरू में एक ऐसे लीडर्स मिल गए तो लोग जो थे दे आल्सो हैड स्टार्टेड, दे हैड अ वेरी गुड इन्फ्लुएंस ऑफ दीज मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स. और शायद ये भी एक रीजन है कि जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उन वो एक अच्छी पावर जो है वो एंजॉय करते हैं, राइट. उसके बाद वी कैन से Indira Gandhi, she was also, I mean, a very popular face, or we can say she was also very popular among the people, and she had a great influence over the public. And even उसकी कैबिनेट में भी उस समय ये माना जाता था कि जो इंदिरा गांधी डिसीजन ले लेती थी, that used to be final, and that could never be, you can say, asked by any of the cabinet minister. And the extent of power wielded by the prime minister also depends on the personality of the person holding that position. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि प्राइम मिनिस्टर कितना पावरफुल होगा. दैट डिपेंड्स ऑन द पर्सन्स पर्सनालिटी ऑल्सो, राइट. आई विल नॉट नेम एनीवन हियर, बट वी कैन इजीली कंपेयर द प्रीवियस एंड द प्रेजेंट heads of the country, right? So here we can, after reading this statement, then we can easily know that the powers depends on the person who is having that position also. Okay, how much power that person is accessing also, and how he is accessing, how he is using those powers for the welfare of the people, right? And however, in recent years, the rise of coalition parties has imposed certain constraints on the power of prime minister. जैसे हमने उस दिन डिस्कस किया था कि जो कोलिशन पार्टीज आजकल आने लग गई हैं, उसके कारण प्राइम मिनिस्टर की पावर्स जो है उसमें थोड़ा सा रुकावट ये आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो अपनी मर्जी से डिसीजन फिर नहीं ले पा रहे हैं. अगर कोलिशन गवर्नमेंट होती है तो प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो अपनी मर्जी से डिसीजन नहीं ले पाएंगे. He has to accommodate different groups and factions in his party as well as among alliance partners. अब जब वो डिसीजन लेंगे तो उसके लिए उन्हें अपनी पार्टी के मेंबर्स का भी ध्यान रखना है, और जो अलायंस पार्टीज हैं या जो कोलिशन गवर्नमेंट बनी है तो जिसने उनको सपोर्ट किया है, जिन पार्टीज ने, उन पार्टीज के बारे में भी इनको सोचना पड़ता है. तो उसमें क्या हो गया है कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ डिसीजन है वो काफी ज्यादा अफेक्ट करती है. He also has to heed to the views and positions of the coalition partners and other partners on who support the survival of the government depends. अगर ये coalition government है तो उन्हें कई बार ऐसा भी होता है कि कई important ministries भी देनी पड़ जाती हैं coalition government को, या जो other supporting parties हैं, जो coalition partners हैं, उनको ministries देनी पड़ती हैं, उनकी बात सुननी पड़ती है. Decision making में भी if they are not agreeing तो कई बार उनकी बात भी माननी पड़ती है. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का सर्वाइवल ही उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है. अगर ये कोलिशन पार्टनर्स किसी भी रीजन से विड्रॉ कर जाएं तो गवर्नमेंट विल फॉल, राइट. तो ये एक ऑब्लिगेशन होती है इनके ऊपर, तो दे हैव टू कीप दीज कोलिशन पार्टनर्स हैप्पी. जिसके कारण क्या होता है कि हमारी जो डिसीजन मेकिंग है जो प्राइम मिनिस्टर की वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हो पाती है. वो उतने फ्रीली डिसीजन नहीं ले सकता है जितने ही वुड हैव बीन टेकिंग इफ
there was a clear majority of his party in the parliament, and it was a single party government. इस बार भी वैसे सिंगल पार्टी है, लेकिन पिछले काफी टाइम से तो सिंगल पार्टी गवर्नमेंट जो है वो आ ही नहीं रही है. देयर इज ऑलवेज अ कोलिशन गवर्नमेंट, क्योंकि सिंगल पार्टी के लिए एक मेजोरिटी लेना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, राइट. सो फिलहाल तो हमारी जो गवर्नमेंट है, इट इज एंजॉयिंग दिस सिंगल पार्टी स्टेटस बिकॉज इट हैज वन विद अ वेरी ग्रेट margin, right? Anyhow, now in the next class we will just talk about the powers of the president.